Hello students, in past video we are almostly clear the basic fundamental of the charge. ओके यानी कि हमने पास्ट वीडियो में सारे के सारे जो भी चार्ज के बेसिक फंडामेंटल थे वो हमने ऑलमोस्ट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया. नाउ वी नो दैट वेन एवर टू चार्ज बॉडी अदरवाइज चार्जेस आर कम क्लोजर टू ईच अदर देन दे कैन क्रिएट अ वन फोर्स दैट इज अट्रैक्टिव टाइप अदरवाइज repulsive type. Okay, so here the question is arise that whatever amount of the charge on the body will create how much amount of the attractive force otherwise the repulsive force. Okay, so that thing can be explained by the what, Coulombs. कूलम ने हमको एक लॉ दिया जिससे हम ये समझ पाएंगे फाइनली कि कोई भी बॉडी पे कितना चार्ज होगा और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उससे फाइनली हमारी फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी वो हम कूलम के लॉ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं अंदर. बराबर. तो हमको सबसे पहले बताया गया कि व्हाट इज द कूलम्स लॉ एंड व्हाट इज इट्स स्केलर फॉर्म, यानी कि उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो द law is very simple, it's almost similar that of the gravitational law. Okay, what is the statement of the gravitational law? The total mass in the universe remain constant. Okay, and the whatever whenever two mass body are come into the interaction with each other, then their forces, gravitational forces, is always proportional to the product of their masses and inversely proportional square of their distance, यानी कि m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एफ प्रोपोर्शनल टू लिखते थे अंदर, वही का वही सेम फंडामेंटल हमको यहाँ पे लिखना है अंदर. बराबर. सो द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज. ओके, हियर electrical forces is exerted between the 2 point charge. It is varies inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional product of the magnitude of the two charge and acted along the line joining of the two charge. यानी कि दो जो चार्ज होके उसको ज्वाइन करती जो लाइन है वो ही डिरेक्शन में फोर्स की डिरेक्शन आपको मिलेगी अंदर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर. बराबर. सो हाउ कैन यू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट? The total charge of the system remain constant, and whenever these any two charge body come into the interaction, okay, so at that time the force is exerted between these two body will always proportional to the बराबर product of that मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि उनका जो चार्ज होगा उसका खाली मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू लिए उसका आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है. अगर एक का चार्ज Q1 है दूसरे का Q2 है तो आपको दोनों का खाली मैग्नीट्यूड लेके प्रोडक्ट करना है अंदर. समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव करके यहाँ पे नहीं लिखना है. एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि दो चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस आर है तो उसका स्क्वायर करो और उसको इनवर्स में यानी कि डिनोमिनेटर में लिखो अंदर. बराबर. तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया अंदर. समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ ड्रॉ द फिगर and mention the thing whatever given in the figure. Consider the two charge, name is Q1 and Q2, the distance between is R in the vacuum. याद रखना आप यहाँ पे जो Coulomb's law को define कर रहे हो तो for that you have to use the vacuum. Okay, if you are using the medium then you are getting your force value may be somewhat different. Okay, and at what amount it will differ we will see in this video. Okay, so whenever you are explaining these two things, that is figure and its description, then you will directly state that so hence F is proportional to product of Q1 and Q2, they are come into the numerator while distance square come into the what, denominator. Yes or no? If you replace your proportionality then you have to place one constant. Yes or no? Okay, so they are just placing the constant and here K is considered as the proportional constant, and as it is the proportional constant of the Coulomb's law, so that's why it is also called the Coulombian constant. ओके, अभी कांस्टेंट है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी कि नहीं होगी भाई. सो फ्रॉम द प्रैक्टिकल they are achieving the value of the K, that is 8.9875 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू -2. आपको लगेगा सर ये यूनिट कैसे बना अंदर. सो फॉलो दिस फॉर्मूला. You have to make the equation as K. So if you making the equation as K, so this R square will go into the what, numerator with the F. So F into R square and divide by Q1 and Q2. So Q1 and Q2. Write down force as a unit Newton,
आर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर इसलिए, और दोनों चार्ज है तो दोनों का कूलम कूलम होगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर ना माइनस में होगा, आ गया कि ना आ गया यूनिट, बराबर। बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ के एस 9 इंटू 10⁹ लेते हैं। कितनी अच्छी वैल्यू है, यहाँ पे भी 9, पावर में भी 9। बहुत ऐसी सा कम क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू में इतनी सिमिलरिटीज हमको देखने को मिलती है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। अब बात करते हैं हम ये के की बात करते हैं, किसकी, के की, बराबर। एक्चुअल में के तो क्या है भाई, ये दो चार्ज के बीच में एक्सर्ट हो रहा है, उसके इक्वेशन का कांस्टेंट है। अभी इस चीज को हमने कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। तो क्या है, वैक्यूम की कोई प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, तो कोई भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, वेदर इट इज अ वैक्यूम, एयर, वाटर, एनीथिंग, ओके, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट, यानी कि उसका जो रिप्रेजेंटेटिव एक फिजिकल क्वांटिटी है, पैरामीटर है, वो क्या है, परमिटिविटी। अंदर क्या है, परमिटिव, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस सिंबल एप्सिलॉन, नेम है उसका, क्या है, एप्सिलॉन। अंदर ऐसे हम क्या कहते हैं, ई जैसा कुछ सिंबल लगाते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको अंदर पार्ट, बराबर। तो फ्री स्पेस की खुद की क्या है भाई, परमिटिविटी है अंदर, जिसको हम एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, और उसकी जो वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12 है अंदर। कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12 है। सो Coulomb will try to find out the relation between this epsilon 0 and the k, and finally he got the idea, and he was found that the k value is nothing but it is the 1/4 pi epsilon 0, यानी कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू के साथ 4 पाई को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ रहा है उसको 1 डिवाइड बाय कर दो, वो अपने आप k की ही वैल्यू मिलेगा। और हर बार यही हुआ अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। यहाँ पे कैपिटल के लिखा है वो गलत है, स्मॉल के आएगा, स्मॉल के इक्वल टू क्या लिखना है आपको भाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखना है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। देखो आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी लिख के दी गई 8.85, आपको 8.85 ही लेनी है, और 10⁻12। और सीधी सी बात है कि के और एप्सिलॉन 0 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, तो के का जो यूनिट होगा उसका ही उल्टा कर दो, तो आपको किसका यूनिट मिल गया भाई, एप्सिलॉन 0 का मिल गया। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी उससे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यूनिट तो हमारे साथ है ही अंदर, बराबर। अब ये आपको ये जो के का नया वैल्यू मिला, याद रखना है, कैपिटल के नहीं लिखना है, स्मॉल के लिखना है अंदर, बराबर। कैपिटल के का अलग मीनिंग निकलता है अंदर, तो उसकी वैल्यू आप इक्वेशन में रख दोगे तो आपका f का थोड़ा इक्वेशन और बड़ा हो जाएगा। f इक्वल टू के की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और q1 q2 डिवाइड बाय क्या होगा, r² होगा। अगर आप फ्री स्पेस की जगह, अगर आप फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम यूज कर रहे हो, एयर है, वाटर है, कुछ भी, और वहां पे आप अगर दो चार्ज के बीच का फाइंड कर रहे हो, सो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन योर कांस्टेंट, बराबर, दैट इज एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन 0। तो आपको वो मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव लगाना पड़ेगा, यानी कि एप्सिलॉन लगाना पड़ेगा अंदर। तो ये जो फॉर्मूला बनी वो किसकी बनी, मीडियम की बनी, और ये कहाँ की बनी, फ्री स्पेस की बनी। तो अगर आप ये तीन इक्वेशन, तीसरे वाले इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हो, यानी कि आप fm डिवाइड बाय f कर रहे हो, तो सब कुछ कट हो जाएगा, 4 पाई भी कट हो जाएगा, आपको कुछ रेशियो मिलेगा एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये तो क्या हुआ भाई, मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस, स्पेस की परमिटिविटी, यानी कि स्पेस के साथ यहाँ पे हमको रेफरेंस मिला अंदर, बराबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं अंदर, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं अंदर, बराबर, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। और यही एप्सिलॉन आर को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल वाला के आया अभी, बराबर। एंड दिस कैपिटल के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखा हुआ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई, कैपिटल के, इन्होंने स्मॉल के लिखा नहीं भाई, कैपिटल के होता है वो, बराबर है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर लिखते हैं, बराबर। और एप्सिलॉन आर बोलो कि के बोलो, दोनों चीज एक ही है, पर के बोलते हो तो उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में देखेंगे, और एप्सिलॉन आर बोलते हैं तो उसको रिलेटिव के टर्म्स में देखेंगे अंदर। समझ में आ रहा है। तो आप जब भी आपने रेशियो लिया तो फाइनली आपको इक्वेशन fm डिवाइड बाय f करोगे, बराबर, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 बाय एप्सिलॉन मिलेगा। मुझसे आगे मिस्टेक हो गई, मैंने उल्टा रेशियो ले लिया था अंदर, बराबर, क्योंकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो फिर उसके हिसाब से मुझे करना पड़ेगा, वो मैं भूल गया था करना अंदर, बराबर। तो आप जब भी रेशियो लेके तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर मिलेगा और एप्सिलॉन नीचे मिलेगा। तो हमने तो इक्वेशन में ऐसा देखा था भाई, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, तो उसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं,
बराबर। तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल, तो हमको उसको भी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बराबर। याद रखना स्मॉल के नहीं है, कैपिटल के है यहाँ पे, बराबर। तो फाइनली आपको पता क्या चला बे, आपके मीडियम में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो फ्रीज केस के जो फोर्स है उससे केथ टाइम आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। यानी कि अगर आप कोई दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अब आपको लगेगा सर हमने तो पहले ऐसी बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि हम जो मीडियम ले रहे हैं वो भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल का एटम का बना हुआ है, अगर वहाँ पे आयनाइजेशन होगा तो उसकी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, वो दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट होगी। इसकी वजह से हमको मीडियम में जो फ्री स्पेस का फोर्स है उससे स्लाइटली क्या मिलता है, कम मिलता है। और कितने टाइम कम मिलता है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक होता है, किसका, जो मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट करो उसकी बात के अंदर। समझ में आया सबको, यस और नो, बराबर। चल अब दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि कूलम ने अपना लॉ तो दिया, बट हाउ कूलम वॉज डायरेक्टेड दिस लॉ, यानी कि उसने एक लॉ फॉर्मुलेट कैसे किया अंदर। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, यहाँ पे दिया गया है उसका अंदर, बराबर। उसने क्या किया, एक बॉडी ली जो क्यू चार्ज थी, यानी कि उस पर टोटल चार्ज क्यू था, और दूसरी उसके ही जैसे सिमिलर टाइप की अनदर बॉडी ली और दोनों के बीच में कांटेक्ट करवा दिया। तो हमने ऑलरेडी चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट सब में देखा था कि व्हेनेवर यू आर कांटेक्टिंग दी टू बॉडी देन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द बोथ ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे दोनों की दोनों बॉडी सेम ही है, बराबर, मटेरियल सब कुछ सेम है, पर एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज है। तो क्या होगा, टोटल चार्ज आपकी ये सिस्टम का क्या होगा, Q + 0, यानी कि Q ही होगा, और दोनों के बीच में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका चार्ज Q/2 रहेगा और इसका भी Q/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो बस इसने वही किया और रिपीट प्रोसीजर किया और कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, पहले दोनों को कांटेक्ट में लिया तो दोनों Q/2 हो गए, बराबर। अब उसमें से एक Q/2 वाला लिया, फिर से एक उसके ही जैसा स्फीयर लिया और वहाँ पे दोनों को कांटेक्ट किया, तो फिर दोनों के बीच में उसका भी आधा हो जाएगा। तो Q/2 का आधा Q/2 का आधा और फिर उसका आधा करो, बराबर। तो क्या होगा आपका Q/4 होगा कि नहीं होगा, तो Q/4 हो गया। फिर दोनों में से एक लिया और फिर से अनचार्ज वाला था उसको कनेक्ट किया तो Q/8 मिला, उसका भी आधा हो जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो उस तरह से उसने एक पूरी सीरीज बनाई ये चार्ज वाली अंदर, Q/2 वाली, Q/4 वाली, Q/8 वाली, Q/16 वाली अंदर। फिर उसने क्या किया, उसमें से कोई भी एक पेयर उठाई और वो पेयर के बीच में उसने डिफरेंट डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स एग्जर्ट जो हो रहा है उसकी वैल्यू को कैलिब्रेट करके देखा, और फिर चेक किया कि वो वैल्यू का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिस्टेंस के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो वो जब उसने फॉर्मुलेट किया तो फाइनली उसको वहाँ पे पता चल गया कि भाई डिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो भी मिल रही है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रही है। और जब रिलेशन प्रॉपर्ली एस्टिमेट किया तो पता चला कि भाई वो r² के प्रोपोर्शन में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है अंदर, समझ में आ रहा है। फिर उसने अनदर थिंग्स क्या किया, डिस्टेंस फिक्स किया और यहाँ पे डिफरेंट पेयर उठाई, एक पहली वाली उठाई, दूसरी वाली, फिर पहली तीसरी वाली उठाई, और सेम डिस्टेंस के लिए उन्होंने चार्ज अलग अलग लेके फिर से ये चीज चेक की। और यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस उसने फिक्स रखा था पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग ली थी अंदर, समझ में आ रहा है। सो ही ट्राइज टू फाइंड आउट दैट ओके व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चार्ज विद द फोर्स, यानी कि चार्ज बदलने से मेरी फोर्स में कितना चेंज होता है। तो उसको पता चल गया कि इफ द टोटल चार्ज इज इंक्रीजिंग, यानी कि दोनों का चार्ज मिला के ऐड करते हो, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, बराबर, तो फिर यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। और जब उसकी मैथमेटिकल वैल्यू को अच्छे से बैलेंस करने का ट्राई किया तो उसको पता चल गया कि भाई और कुछ नहीं करना है, दोनों के चार्ज को मल्टीप्लाई ही करना है, और मल्टीप्लाई के जो भी आंसर आ रहा है वो ही प्रोपोर्शन में फोर्स की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अंदर, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से उन्होंने फाइनली ये फॉर्मूला डिराइव की कि भाई F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और आगे क्या किया था, F प्रोपोर्शनल टू 1r², दोनों को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया, और फाइनली हमको ये इक्वेशन मिला। एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन ही डिराइव द वर्बल लॉ, बराबर, यानी कि उसने हमको एक वर्बल लॉ दिया अंदर, समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर। अभी लास्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, सो कूलम्स लॉ इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्ज।
यानी कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि अगर आपको कोई भी चार्ज बॉडी लेने हो तो वो पॉइंट होना चाहिए, यानी कि पॉइंट लाइक होना चाहिए। अगर वो पॉइंट लाइक नहीं ले सकते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, वो दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनकी साइज के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब वो दो बॉडी को आप क्या कर सकते हो, पॉइंट चार्ज ले सकते हो। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट चार्ज, देन एंड देन यू आर एबल टू अप्लाई दी Coulomb's law, otherwise your Coulomb's law will be Coulomb's law application will be meaningless, वो meaningless हो जाएगी अंदर। तो पहला उसका लिमिटेशन क्या है कि चार्ज शुड बी व्हाट, पॉइंट वाइज, बराबर पॉइंट चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज ये लोग कोई काम का रहता नहीं है। दूसरा, चार्ज शुड बी रेस्ट, चार्ज हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहना चाहिए, वेदर उस पर कोई भी फोर्स लग रहा हो कि ना लग रहा हो। हम दो चार्ज को एक दूसरे के रीजन में लाएंगे तो बट ऑब्वियस या तो फिर अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो सीधी बात है कि अट्रैक्टिव फोर्स से दोनों एक दूसरे के क्लोजर जाएंगे बट रिपल्सिव से दूर जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे तो मोशन हुआ तो डिस्टेंस बदलता जाएगा, तो कूलम्स लॉ का कोई मतलब ही नहीं है ना अंदर, बराबर। इसलिए बोला गया कि व्हेनेवर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ, एट दैट टाइम यू हैव टू कीप अ कंडीशन इन अ सच अ वे दैट योर चार्ज मे रिमेन स्टेशनरी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस हो फिर भी वो रेस्ट में रहने चाहिए, तब जाके ही आप कूलम्ब के लॉ को क्या कर सकते हो, वेरीफाइड कर सकते हो अंदर, बराबर। तीसरी बात बोली गई है कि अगर आप दो बॉडी के अथवा अदरवाइज दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है, बराबर, वो ग्रेटर देन 10⁻⁻15 रखना। क्यों? क्योंकि अगर लेसर देन रख रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी यहाँ पे लगने चालू हो जाएगा अंदर, तो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट का तो कोई मीनिंग ही नहीं। हम तो कूलम्ब फोर्स फाइंड करें तो न्यूक्लियर फोर्स घुस जाएगा अंदर, तो फिर हम कूलम्स लॉ को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे नहीं। और उसी तरह आपको बड़ी भी एक रेंज दी है कि 10⁻18 मीटर से आपको ज़्यादा रखनी नहीं है, क्योंकि कूलम्स लॉ या इट इज़ अ वाइड रेंज फोर्स, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे वो एग्जर्ट हो रहा है, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में यही चीज़ है कि आप जो भी चार्ज ले रहे हो उसका जो रीज़न है उसके अंदर ही आप कूलम्ब फोर्स फाइंड कर सकते हो, उसके रीज़न के बारे आपके पास कोई मीनिंग होता नहीं अंदर। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे क्या किया, कूलम्ब लॉ क्या है वो डिस्कस किया, उसने किस तरह से सेटअप किया वो भी डिस्कस किया, और कूलम्ब लॉ की लिमिटेशंस भी देखी। अब ये कूलम्ब लॉ की एप्लीकेशन जो है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो अगेन आ रही है यहाँ पे वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें सारी की सारी डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।